Hello everyone, welcome back. So without wasting any time, let's start with today's class. Today we'll discuss the interpretation clause of the Indian Contract Act. The interpretation clause is given under section 2. Before discussing it, let's take an example first. A asked B to buy his phone for rupees 20,000. B said, "Yes, I'll buy your phone." Now, when A asked B to buy his phone for rupees 20,000, A is doing what? A is offering B. Or I would say A is making proposal to B to buy his phone for rupees 20,000. This is the proposal. This is what? Proposal. Which is given under section 2 clause A. Now B said, "Yes, I'll buy your phone." The moment B said yes, this is the acceptance of the proposal given by A to B. This is what? This is the acceptance of the proposal. Right? And when the proposal is accepted, it becomes promise, which is given under section 2 clause B. So what is proposal? When A is asking B, A is offering B to buy his phone, he is making proposal to B. And when B is giving his assent to A that yes, I'll buy your phone, this is the acceptance of the proposal. And when the proposal is accepted, it becomes promise. Got it? Now one thing, the person who is making the proposal, A, so the person who is making the proposal is known as the promiser, and the person to whom the proposal is made, or I would say the person who is accepting the proposal, कौन कर रहा है? B. तो ये क्या होगा? He is the promisee. ये दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज C के अंदर. ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रोविजंस. 2A प्रपोजल क्या बोलता है? When one person signifies to another his willingness, to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, he is said to make a proposal. तो A ने क्या किया था? A ने B को अपने willingness शो की थी अपना फोन बाय करने के लिए, सेल करने के लिए. ठीक है, ये प्रपोजल था. To B is promise. When the person to whom the proposal is made, किसको किया था proposal? B को. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, B ने अपना assent दिया था, yes, I'll buy your phone. The proposal is said to be accepted, and proposal when accepted becomes a promise. This is promise. ठीक है. फिर 2 clause C कहता है promiser and promisee. The person making the proposal is called promiser, and the person accepting the proposal is called promisee. ठीक है, समझ में आए सब? 2 clause A में proposal है, 2B में promise है, 2C is promiser and promisee. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. 2 clause D कहता है consideration. Consideration क्या होता है? When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration. When at the desire of the promiser कौन था? A की desire पे promisee या कोई और other person, कोई भी. promisee कौन है? B. क्या कर रहा है? वो उसके डिजायर पे उसको क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है ना. ए ने बोला विल यू बाय माई फोन फॉर 20,000 रुपीज, तो बी उसको क्या दे रहा है रिटर्न में? 20,000 रुपीज. तो ये 20,000 रुपीज क्या है? ये कंसिडरेशन है फॉर ए. इन सिंपल वर्ड्स पॉलक ने बोला है कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट and the promise thus given for value is enforceable. Consideration वो प्राइस है प्रॉमिस का दूसरे इंसान के. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देखें तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ. कुछ आपको रिटर्न में आप कर रहे हो. ठीक है, वो होता है कंसिडरेशन. जैसे कि ए को क्या हो रहा है? ए को रिटर्न में बी क्या दे रहा है? 20,000 रुपीज दे रहा है, और बी को क्या मिल रहा है? फोन मिल रहा है ना. तो ये हो गया आपका कंसिडरेशन फॉर promise. ठीक है, consideration it is in itself a very detailed topic, so we'll make a separate video on it.
ठीक है, तो उसमें हम अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही समझो कि कंसिडरेशन क्या मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज ई विच इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? Every promise and every set of promises, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Forming the consideration for each other. यहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल में क्या देखा था, ए ने कहा फोन बेचने के लिए, तो बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है वो 20,000 रुपीज देगा, और एक ने क्या प्रॉमिस किया था कि वो उसको बदले में फोन दे रहा है। तो दोनों का कंसिडरेशन हो रहा है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? एग्रीमेंट फॉर्म हो गया। तो दिस इज व्हाट एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, 2F कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. वेरी सिंपल है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, एक अलग, अपोजिट। ठीक है, 2G बात करता है वॉइड एग्रीमेंट्स की। 2 क्लॉज जी कहता है वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। 2G को समझने से पहले हम पढ़ते हैं कि 2H में क्या है। 2H कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कहते हैं एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी हमने एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट हमें समझ में आ गया कि क्या होता है ना, वी नो व्हाट इज एग्रीमेंट। नाउ अब बताइए कि एनफोर्सेबल का क्या मतलब होता है? एनफोर्सेबल का मतलब होता है विच कैन बी ब्रॉट इनटू फोर्स, जिसको हम फोर्स में ला सकते हैं। तो वो एग्रीमेंट जिनको एनफोर्स कराया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, और वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या था? वो एग्रीमेंट जिनको एनफोर्स नहीं करा सकते वो वॉइड हो जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई इलीगल काम के लिए हमने एग्रीमेंट किया। ठीक है, अगर कोई इलीगल काम के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो तो क्या उस केस में आप कोर्ट जाओगे उसको एनफोर्स कराने के लिए? अगर वो दूसरी पार्टी नहीं कर रहा है आपका काम, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो उसको एनफोर्स कराने के लिए? नहीं जा सकते हो ना। तो दिस इज व्हाट द वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, जिसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, वो वॉइड हो जाता है। बट उन एग्रीमेंट जिनको हम एनफोर्स करा सकते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट 2I कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, वो voidable contract होते हैं। क्या मतलब है इसका? ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली हैपन होते हैं when one side of the party is tricked by the other party into entering a contract। आप कोई दो पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आप एक पार्टी को ट्रिक करके या कह लो कुछ इन्फ्लुएंस करके उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहे हो। तो ये उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि वो चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को रखना या फिर वो उसको बंद करना चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल का मतलब होता है ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ठीक है, ये वैलिड होते हैं तब तक जब तक दूसरा पार्टी उनको सेट असाइड नहीं कर देता, तब तक ये वैलिड होते हैं। ठीक, तो दीज आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिकली ये एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज ऑब्टेन्ड, उस पे ये वॉइडेबल होते हैं। जिसका कंसेंट हमने लिया है, फोर्स के थ्रू कह लो या फिर इन्फ्लुएंस के थ्रू कह लो, उसके ऑप्शन पे इसको, उसके कंसेंट के ऑप्शन पे इसको वॉइडेबल किया जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो ये होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर 2J बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब आप उनको एनफोर्सेबल नहीं करा सकते हो बाय लॉ, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ माइनर, क्या वो क्या होता है? क्या वो वैलिड है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर नहीं, वो वॉइड होता है। ठीक है, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर, तो ये हो गए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। So these are the 10 definitions which are given under this act, interpretation clause में section 2 के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, एंड दे विल गिव यू द सेक्शंस, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, राइट?
या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम आगे की वीडियोस में डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कंसिडरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रपोजल पढ़ेंगे कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफर्स पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, विल डू इट स्लोली एंड स्लोली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। कीप वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।